یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ موشوق کابرنی سے خبریں سنیے۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ لداخ آٹونامس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل کے چناؤ میں انڈین نیشنل کانگریس اور نیشنل کانفرنس اتحاد کا پلٹا باری، اب تک 15 سیٹوں کے نتائج برآمد۔ پانی کے معیار کی نگرانی کے معاملے میں جموں کشمیر نے قومی سطح پر کیا دوسرا درجہ حاصل۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حالات کشیدہ، سینکڑوں افراد کے مارے جانے کی اطلاع۔ اسرائیل اور فلسطین میں قیام پذیر بھارتی شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری۔ اور افغانستان میں آئے خوفناک زلزلے میں 2000 سے زائد افراد جاں بحق، امدادی اور بچاؤ کارروائیاں جاری۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رواں ماہ کی 4 تاریخ کو 5ویں لداخ خود مختار ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل کے لیے ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ آخری خبریں ملنے تک 6 مرحلوں کی گنتی مکمل ہو چکی تھی، جس دوران 15 سیٹوں کے نتائج کا اعلان کیا گیا۔ انڈین نیشنل کانگریس نے 7 سیٹیں، نیشنل کانفرنس نے 5 سیٹیں حاصل کی، جبکہ بی جے پی نے 2 اور آزاد امیدوار نے 1 سیٹ حاصل کی ہے۔ باقی 11 حلقوں پر ووٹ شماری کا کام جاری ہے۔ یاد رہے، لداخ میں 5ویں لداخ خود مختار ہل ڈیولپمنٹ کونسل LAHDC کرگل چناؤ کے لیے ووٹوں کی گنتی پولی ٹیکنیک کالج کرگل میں آج صبح 8 بجے شروع ہوئی تھی۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد مرکز کے زیر انتظام علاقے میں یہ پہلا چناؤ تھا۔ کرگل کی عوام نے اس ماہ کی 4 تاریخ کو اس چناؤ میں 77.6% ووٹ ڈالنے کے ساتھ جمہوری عمل میں اپنے زبردست اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ چناؤ میں کانگریس نیشنل کانفرنس اتحاد براہ راست 26 کونسل سیٹوں پر بی جے پی کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترا تھا۔ اس چناؤ میں کانگریس کے 22، نیشنل کانفرنس کے 17، بی جے پی کے 17، عام آدمی پارٹی کے 4 اور 24 آزاد امیدواروں سمیت کل 84 امیدوار میدان میں تھے۔ بھاری صنعتوں اور عوامی کاروباری اداروں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر مہندرا ناتھ پانڈے نے مرکزی حکومت کے عوامی رسائی پروگرام اور خطے میں ترقی کو فروغ دینے کے عزم کے تحت آج اسپائس پارک پامپور کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے اسپائس پارک، پروسیسنگ یونٹس اور بنیادی ڈھانچے کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر محکمہ زراعت نے زعفران پارک کی سرگرمیوں کا ایک جامع جائزہ پیش کیا اور زعفران کے معیار کو برقرار رکھنے اور جیوگرافیکل انڈیکشن GI ٹیگ کو محفوظ بنانے میں اس کے اہم کردار پر زور دیا۔ زعفران کے کاشتکاروں کے ساتھ ایک میٹنگ میں ڈاکٹر پانڈے نے زعفران کی کاشت میں معاونت کرنے والے پالیسیوں کے بارے میں روشنی ڈالی۔ اس موقع پر کسانوں نے سرکار کی طرف سے فراہم کردہ سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ جموں کشمیر میں جل جیون مشن کے تحت نل کے ذریعے پینے کے پانی کی فراہمی کے معاملے میں 70% دیہی گھرانوں کو مشن کے دائرے میں لا کر جموں کشمیر نے ایک اور کارنامہ انجام دیا ہے۔ پانی کے معیار کی نگرانی کے معاملے میں بھی UT نے قومی سطح پر دوسرا درجہ حاصل کیا۔ مشن کے تحت اب تک 18,68,000 دیہی گھرانوں میں سے 13,16,000 گھرانوں کو نل کے ذریعے پانی فراہم کیا گیا۔ واٹر کوالٹی مانیٹرنگ اینڈ سرویلنس کے تحت جموں کشمیر کو پانی کے معیار کی جانچ میں کارکردگی کی بنیاد پر قومی سطح پر دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ پچھلے 1 سال سے جل جیون مشن کے نفاذ کی رفتار میں تیزی کے ساتھ UT کو اگلے 30 سالوں تک اپنی تمام دیہی آبادی کے لیے پینے کے پانی کی حفاظت کی توقع ہے۔ یاد رہے کہ جل جیون مشن نے اس سال اگست میں اپنی رابطہ مہم کے 15 دن کے دوران تقریباً 9,000 سرگرمیاں درج کی، جس دوران جموں کشمیر کے دیہی علاقوں میں بڑے پیمانے پر بیداری اور عوامی رابطہ مہم کا انعقاد کیا گیا۔ فلسطینی جنگجو گروپ حماس کی طرف سے وسطی اسرائیل میں راکٹ حملوں کے بعد فلسطین اور اسرائیل کے درمیان حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ان حملوں کے بعد سورڈز آف آئرن نامی ایک آپریشن شروع کر دیا ہے، جس کے تحت غزہ پٹی میں حماس کے بیشتر ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔
इसी दौरान इसराइल और हमास के दरमियान जारी कशीदगी के दरमियान लेबनान के हिजबुल्लाह अस्करियत पसंद ग्रुप ने इसराइल के जेर कब्जा गोलान की पहाड़ियों पर 3 इसराइली ठिकानों पर दर्जनों रॉकेट फायर किए। ग्रुप ने एक बयान में कहा है कि यह हमला फलस्तीनी अवाम के साथ इजहारी यकजहती के लिए किया गया। इसके जवाब में इसराइली फौज ने लबनानी इलाकों पर जवाबी फायरिंग की और लबनान की हिजबुल्लाह तहरीक को खबरदार किया कि वो लड़ाई में शामिल न हों। इसराइली बचाव फोर्स ने जंगी हालात का अलर्ट जारी किया है। इतलात के मुताबिक रॉकेट हमले में इसराइली मेयर भी मारे गए। गजा में कई इसराइलियों को यरगमाल भी बनाया गया है। दरियासना आलमी रहनुमाओं ने भी हमास की तरफ से इसराइल पर हमले की मजम्मत की है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइल के साथ यकजहती का इजहार करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान के ख्यालात और दुआएं मासूम मुतासरीन और उनके अहल खाना के साथ हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि दहशतगर्दी का कभी कोई जवाज नहीं बनता। उन्होंने मजीद कहा कि वाशिंगटन इसराइल की हुकूमत और अवाम के साथ मजबूती से खड़ा है। दरियासना भारत ने इसराइल में अपने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो इसराइल पर हमास के दहशतगर्दाना हमले के पेश नजर इंतहाई चौकसी बरतें और पूरी तरह मुहतात रहें। इसराइल में भारतीय सफारतखाने ने भारतीय शहरियों से अपील की है कि वो गैर जरूरी घूमने फिरने से गुरेज करें और महफूज पनाहगाहों के आसपास ही रहें। हंगामी सूरत हाल की सूरत में सफारतखाने के साथ टेलीफोन नंबर 9723522648 पर राब्ता कायम किया जा सकता है और kansfan.telaviv@mea.gov.in पर भी पैगाम भेजा जा सकता है। इस दौरान फलस्तीन में भारत के नुमाइंदा दफ्तर ने रमला में सभी भारतीय शहरियों से कहा है कि वो हंगामी या किसी भी तरह की इमदाद की सूरत में उनके दफ्तर से बराह रास्त राब्ता करें। नुमाइंदा दफ्तर ने एक 24 घंटे का इमरजेंसी हेल्पलाइन भी फराहम किया है। फलस्तीन में भारतीय शहरी भारत के नुमाइंदा दफ्तर से 24 घंटे इमरजेंसी हेल्पलाइन जवाल 9164180592 व्हाट्सएप 5929164190 पर किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए या इमदाद की सूरत में बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। इधर एयर इंडिया ने 14 अक्टूबर तक तल अबीब आने और जाने वाले अपनी परवाजें मंसूख कर दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एयरलाइन ने कहा कि इसकी तल अबीब जाने और आने वाली परवाजें मुसाफिरों और अमले की हिफाजत के लिए हफ्ता तक मुअत्तल रहेंगी। एयरलाइन ने यह भी कहा कि वो इन मुसाफिरों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी जिन्होंने इस मुद्दत के दौरान किसी भी परवाज में बुकिंग की तस्दीक की है। भारतीय फजाया आज अपना 51वां यौम तासीस मना रही है। इस मौके पर फजाया ने उत्तर प्रदेश के बमरौली एयरफोर्स स्टेशन के मकाम पर एक रस्मी परेड और प्रयागराज में ऑर्डिनेंस डिपो फोर्ट के नजदीक संगम इलाके के ऊपर हवाई करतबों का मुजाहरा किया। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस तकरीब में शिरकत की। भारतीय फजाया ने आज एयरफोर्स डे परेड में अपना नया परचम मुतारिफ कराया। बमरौली एयरफोर्स स्टेशन पर इस रस्मी परेड में फजाइया के जांबाजों ने पूरे जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया, जबकि छाता बरादर फौजी ने गैर मामूली करतबों का मुजाहरा करके लोगों को महजूज कर दिया। परेड में पहली मर्तबा खवातीन अग्निवीरों की एक बटालियन ने भी शिरकत की। फजाई नुमाइश में राफेल लड़ाकू तैयारों और हेलीकॉप्टरों समेत 100 से ज्यादा लड़ाका और ट्रांसपोर्ट तैयारों ने भारतीय फजाया की ताकत को उजागर किया। इसी दौरान MiG-21 को रस्मी अलविदाया दिया गया, जबकि हाल ही में शामिल किए गए C-295 ट्रांसपोर्ट तैयारा का आगाज किया गया।
भारतीय फजाया की हेलीकॉप्टरों से अपनी करतबों का मुजाहरा करने वाली टीम सारंग ने पहली मर्तबा अपने फन का मुजाहरा किया। इनके अलावा हवाई जहाजों की कलाबाजियों का मुजाहरा करने वाली सूर्य किरण टीम ने अपने मुख्तलिफ करतबों का मुजाहरा किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज फजाइया के दिन के मौके पर फजाइया के सभी जांबाजों और उनके अहल खाना को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय फजाइया नई बुलंदियां छू रही है और मुल्क को ऐसे ताकतवर, जांबाज और मुतहरिक फजाइया पर फख्र है जो हमेशा चैलेंजों का सामना करने के लिए तैयार रहती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को अपनी फजाइया की बहादुरी, अहद बस्तगी और जांबाजी पर फख्र है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने मजीद कहा कि उनकी अजीम खदमत और कुर्बानियों की बदौलत हमारी फजाई हदूद की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सका है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एयरफोर्स डे के मौके पर एयर वॉरियर्स और उनके अहल खाना को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स गैर मुतज़लज़िल हिम्मत और मुमताज़ खदमात की मिलामत है और उन्हें सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि इनकी हिम्मत, बहादुरी और कुर्बानी के जज्बे के साथ इंडियन एयरफोर्स आसमानों की हिफाजत और इंसानी चैलेंजों से निमटने के लिए काबिल तारीफ है। अफगानिस्तान में कल ईरानी सरहद के नजदीक मुल्क के मगरबी हिस्से में आए एक ताकतवर जलजले में कम से कम 2000 अफराद हलाक हो गए हैं। 6.3 की शिद्दत का जलजला मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे हेरात के शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर महसूस किया गया। जलजले से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और बहुत से लोग मलबे में फंसे हुए हैं। जलजले के झटके महसूस किए जाने के बाद 3 और जलजले महसूस किए गए। हेरात ईरान की सरहद से 120 किलोमीटर दूर मशरिक में वाक़ा है और ये अफगानिस्तान की सकाफती राजधानी भी तस्वुर की जाती है। 2 दहाइयों में मुल्क में ये सबसे शदीद जलजला बताया जाता है। सूबे की आफात से निमटने वाली अथॉरिटी के सरबरा मूसा शहरी ने नामानिगारों को बताया कि ताकतवर जलजले की वजह से ख्वातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत 1000 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। श्रीनगर में सियाहत को बढ़ावा देने के लिए सारस आजीविका मेले का दूसरा एडिशन कल यानी 9 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन, महकमा दीही तरक्की और पंचायती राज के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाला ये 10 रोजा मेला फन, दस्तकारी, सकाफत और जियाफतों वगैरह पर मबनी है। भारत की 17 मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले 200 से ज्यादा हुनरमंद दीही खवातीन, कारीगर उम्मीद वुमेन्स हार्ट बुलेवार्ड रोड डेलगेट में अपनी उम्दा दस्तकारी, हैंडलूम, तख्लीकात और इलाकाई जियाफतों का मुजाहरा करेंगी। इदारा फिक्र फन जम्मू कश्मीर की तरफ से नस्बल सुंबल में एक पुरविकार तकरीब के दौरान सूफी शायर अब्दुल समद मलिक के शायरी मजमुआ इरफान समद की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर वादी के नामवर अदीब और ब्रॉडकास्टर अब्दुल अहद फराद, कलमकार सनाउल्लाह यूसुफजाई, सहाफी, कलमकार और शायर रशीद राहिल, शायर और अदीब इंजीनियर बशीर शबनम के अलावा मुतअद्दिद शख्सियात मौजूद थे। तकरीब के आखिर पर महफिल मुशायरा का एहतमाम भी किया गया था। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34.2 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 21.4 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 2.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।